Hi everyone, welcome to the lecture on Laplace transformation. In this video, we are going to discuss solution of this 9th question. This question asked by the student in Telegram group. So one by one, we will discuss its solution. All question covering in one video is not possible. So some question we solve in this video and remaining we will discuss in the next coming video. And thank you so much for subscribing the channel and sharing your nice comments. Most of the students sharing that these videos are helpful for their exam. So it feels very happy and giving the motivation to make the important and interesting video for you. If you also having the doubt, share your doubts in Telegram group and subscribe the channel because this 8k subscriber is only 3% of total viewers. And if you are subscribing the channel, it's really giving the motivation to make important and interesting videos. In the previous video of Laplace transformation, I have discussed the important formulas, how to solve the questions, and there are so many application based problem and inverse Laplace transformation. Because when this chapter is in your syllabus, so most of the time the high weightage topic is application of Laplace transformation and inverse Laplace transformation. You have to solve the Laplace inverse by using the convolution theorem or by partial fraction method. So that is the maximum weightage topic and that I have covered with maximum example in previous video. That link you can find in the description box or click on the above icon, you will get the link of that video. So let's start with our today's topic. First topic is based on their simple Laplace transformation formula. Let's assume that I will write here one example. अगर इनकेस आपके पास में लैप्लास में कोई क्वेश्चन एडिशन के फॉर्म में आता है तो वहां पे कितने भी टर्म्स हो सकते हैं. Let's suppose I will take here sin 3t plus 5 cos 100t plus e raised to the power 3t plus let's suppose here we take t raised to the power 5. अब यहाँ पे टर्म देखोगे तो कितने भी टर्म्स रहो बट अगर ये एडिशन के फॉर्म में है तो लाप्लास ये एक लीनियर है. मतलब जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बिहेव करेंगे सेम लैप्लास करेगा बिकॉज लैप्लास इनडायरेक्टली क्या होता है इंटीग्रेशन. लैप्लास इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ही. तो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन हम टर्म वाइज सेपरेट कर सकते हैं एडिशन में. तो सेम वे यहाँ पे लैप्लास क्या होगा टर्म वाइज सेपरेट. सो यू कैन राइट दिस इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t प्लस कांस्टेंट यू कैन टेक आउटसाइड. जैसे इंटीग्रल में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यू कैन टेक आउटसाइड. लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 100t plus Laplace transformation of e raised to the power 3t plus Laplace transformation of t raised to the power 5. Apply the standard formulas. So here Laplace of sin is 3 upon s square plus 9. So देखो sin में s से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट a upon s square plus a square. अब cos तो cos में c है तो आपको स्टार्ट s से करना है. तो ऐसे आप फॉर्मूलेस को याद कर सकते हैं कि साइन के इसमें a अपॉन आता है और cos तो cos में s अपॉन. बिकॉज यहाँ पे साइन में ऑलरेडी s आ चुका है स्टार्टिंग में तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में लेना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस ऑफ cos क्या होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो a इज हियर 100. देन लैप्लास ऑफ e इज 1 अपॉन s माइनस 3. तो पावर में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा. पावर में अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा. एंड नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t raised to the power 5 is here we have to use Laplace of t raised to the power n is n factorial upon s raised to the power n plus 1. So using this formula it is a 5 factorial upon s raised to the power 5 plus 1 is 6. So this is the answer of this question. तो एडिशन में अगर टर्म है तो you can solve the Laplace directly. अब जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है वहां पे क्या है साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या. लेट्स सपोज हियर द क्वेश्चन इज Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो ये है क्वेश्चन में. अब इसमें क्या है साइन का तो फॉर्मूला हमें पता है. Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज ए अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो क्या हम इसका स्क्वायरिंग कर दे सो दैट यू विल गेट साइन स्क्वायर. नो, बिकॉज इन इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रेशन में दो टर्म प्रोडक्ट में है तो वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है. इसका मतलब है आप लाप्लास जैसे इंटीग्रल में आप इंटीग्रेशन u v, you cannot write integration of u into integration of
v। तो ऐसे नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप अलग साइन का निकालोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। So whenever there is a term of sine square, sine cube, cos square, cos cube और sin into cos, cos into sin, cos cos, तो इसमें क्या करोगे प्रोडक्ट में यूज द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस। मैंने फॉर्मूलेस भी डिस्कस किए हुए हैं, आपको वो शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर मिल जाएगा जहाँ पे हमने फॉर्मूलेस को डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा टू अवॉइड द स्क्वायर, मतलब एडिशन में कन्वर्ट करना है इसको। सो फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा is 1 minus cos 2 theta divided by 2. So using this formula, we can write it is a 1 minus cos 2 and here angle is omega t divided by 2. Now Laplace में constant you can take outside. So this 2 you can take outside and separate the Laplace transformation term wise. So here Laplace transformation of 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। और लिसन, एक स्टूडेंट ने ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लैप्लास में यूज नहीं कर सकते। इट इज करेक्ट, आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे स्क्वायर यूज नहीं करोगे बिकॉज स्क्वायर का मीनिंग कुछ अलग होता है। यहाँ पे ऑलवेज हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं लैप्लास के अंदर, बट मुझे हैबिट है कि आई एम यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट। और जो बुक्स आप रेफर करते हो, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में बुक्स जो रेफरेंस बुक्स होते हैं तो उसमें उन्होंने ये नोटेशन यूज किया हुआ है, तो उसके लिए वहां पे उस पर्टिकुलर इसमें अगर दिया हुआ है तो देन यू कैन यूज दैट नोटेशन। बस ट्राई करो कि लैप्लास के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज उसका मीनिंग अलग होता है। तो कुछ बुक्स में यहाँ पे यूज किया हुआ है तो वहां पे वो दिया हुआ है कि दे कैन यूज फॉर बाय डेफिनेशन यू कैन टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट, बट the standard is you have to use the curly bracket. Now here Laplace of 1. So Laplace of 1 क्या होता है is 1 upon s. Laplace of cos is s upon s square plus omega square. अब इसके आगे आपको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज अगर सिंप्लीफाइड होता नहीं होगा नेक्स्ट स्टेप में तो यू कैन राइट दिस आंसर एज अ फाइनल आंसर, बट अगर सिंप्लीफाई होना पॉसिबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो दिस 1/2 कांस्टेंट एज इट इज एंड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म, सो यू विल गेट s square plus omega square minus s square upon s square plus omega square. Now here s square minus s square will be 0. So final answer of our question is 1 upon 2 omega square upon s in bracket s square plus omega square. So this is the answer of our question sin square omega. Now the next question is Laplace inverse of root of 8 divided by s plus root 2 whole cube. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस लैप्लास के पता है तो चेक करो किसमें s का क्यूब, s स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूलेस आते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। इनकेस अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन है लैप्लास इनवर्स ऑफ 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पे क्या है s का स्क्वायर प्लस ऑफ कांस्टेंट है, तो s स्क्वायर प्लस ऑफ कांस्टेंट तो कौन से फॉर्मूले में आता है साइन और कॉस। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 इसमें क्या होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो चेक करो यही इसी तरह से क्या, और आपको कांस्टेंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज कांस्टेंट आप बाहर निकाल के ये जो कांस्टेंट होता है उसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो टर्म है a स्क्वायर 5 स्क्वायर और यहाँ पे 5, तो मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा साइन 5t का। डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। अगर यहाँ पे इनकेस ऐसा टर्म है कि लेट्स सपोज 1 अपॉन s माइनस 100, तो s में माइनस 100 तो s माइनस 100 तो a ये जो टर्म है इट इज कॉल्ड द a, तो इट इज नथिंग बट e रेज़ टू पावर 100t बिकॉज माइनस है तो पावर में क्या लेते हैं प्लस। तो इनवर्स में हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस को उल्टा करना पड़ता है। तो यहाँ पे s का कोई पावर नहीं है तो इट इज सिंपली e, यहाँ पे s का स्क्वायर है बट कांस्टेंट एडिशन में तो वी विल गेट साइन और कॉस। अगर पूरे ही टर्म का स्क्वायर है तो वो जो स्क्वायर क्यूब जो भी टर्म रहेगा वो कहाँ पे आता है इन द फॉर्मूलेस ऑफ t, बिकॉज t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज़ टू पावर n इज n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब इसमें l को इधर शिफ्ट कर दो
तो ये क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n+1, ये l इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका लाप्लास इनवर्स, अभी n फैक्टोरियल क्या होगा इधर जाके डिवाइड में, सो 1/n t⁻n, सो दैट इज t⁻n/n फैक्टोरियल। तो इसमें आता है पावर ऑफ x। और जब आप s में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब अगर लाप्लास ऑफ e a t इंटू कोई टर्म है तो लेट सपोज आई विल टेक साइन बी टी, तो आपको ये क्या करना है, साइन का जो फॉर्मूला रहेगा वही फॉर्मूला, दैट इज b/s² प्लस b², और इसमें e मल्टीप्लीकेशन में तो बाय शिफ्टिंग लॉ ये s में क्या होता है, ये पावर ऑफ e जो भी कांस्टेंट है a दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब ये टर्म कैसा होगा, s माइनस a होल स्क्वायर। तो whenever there is an addition subtraction in s, so that term we have to write in the power of e by using the shifting law। तो यहाँ पे वही अप्लाई करना है, शिफ्टिंग लॉ। तो इनवर्स शिफ्टिंग लॉ अगर आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इन द सॉल्यूशन हियर लाप्लास इनवर्स ऑफ √8 divided by s plus √2 whole cube, I will take this √8 constant outside and here this s minus of √2, so you will take the e raised to e power, so I will write here first term as it is 1/s plus √2 raised to e power 3. Use this formula, so using this formula here Laplace inverse of 1/s³, 1/s³, क्यूब मीन्स यहाँ पे क्या होगा 2 + 1, ये 3 मतलब क्या होता है 2 + 1, तो n का वैल्यू क्या होगा 2, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इट इज ए t⁻²/2 फैक्टोरियल। तो ये जो टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, √8 t⁻²/2 फैक्टोरियल, और s में क्या सब्ट्रैक्ट किया है √2, तो वो किस में आ जाएगा e⁻√2। तो यूजिंग इनवर्स शिफ्टिंग लॉ ये जो s में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे ऐड है तो e के पावर में माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस होता था तो u के पावर में प्लस, तो e s में जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट किया है दैट वी हैव टू शिफ्ट इन e, और जो बचा हुआ 1/s³ है तो 1/s³ मतलब t का फॉर्मूला, तो यू विल गेट दिस आंसर। अब इसके आगे 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है दैट यू हैव टू ट्राई टू सिंप्लीफाई, √8 divided by 2 t² e⁻−√2t, और 8 √8 we can write √8 is nothing but 2 √2 because 8 is 4 into 2 और √4 मतलब 2, तो 2 into √2, so 8 अगर 2 into √2 लिखोगे तो डिवीजन का जो 2 है that you can cancel out with that numerator 2, so here √2 t² e⁻−√2t, so this will be the final answer of our question। so simplification को भी marks रहते हैं, so that's why you have to try to simplify the question, so hence we get the solution of this question। remaining we will discuss in the next video। thank you, like, share, subscribe।